الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ کن کن مراحل سے وہ گزرے ہیں. لڑکپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھتے ہیں. سب سے پہلا حکم ہوتا ہے کہ جان نظر کرو. طاقت مقابلے میں آتی ہے اور وہ آگ جلاتی ہے اور ادھر صداقت سچ ڈال کر سامنے آ جاتی ہے اور اس طاقت کا مقابلہ کرتی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو طاقت دھمکیاں دے رہی تھی اس طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ نمرود نے شعلے بھڑکائے. اب شعلے نمرود نے بھڑکائے. اس سے پہلے کا واقعہ کس وجہ سے آگ میں چلایا گیا پچھلے جمعہ بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، بت خانے میں داخل ہوئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں یہ سارا کام کیا تھا. سزا کے طور پر وہ پکڑ کر لے آئے. کہا کہ ابراہیم کو سزا دو. سزا کیا دو؟ ہر حقوق ہو، اس کو آگ میں جلا دو. اب آگ میں جلانے کے لیے بڑا انتظام کیا گیا. کئی دنوں تک خندق کھودی گئی، اس میں آگ جلائی گئی. کئی دنوں تک آگ دہکائی جاتی رہی کہ اس میں ابراہیم کو ڈالنا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت وہ آگ تو اتنی تیز تھی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل جاتا، وہ بھی بجھ جاتا. لیکن اس آگ کا اثر ابراہیم پر نہیں ہوا. آج شیر نمرود میں ابراہیم علیہ السلام نے جانا قبول کر لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عشق کا مظاہرہ کیا، عقل سے نہیں سوچا. آج بھی ہو جو ابراہیم کسائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ جذبات اگر آج بھی ہوں تو اللہ کی مدد اور نصرت آ سکتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا، بے شمار قربانیاں تھیں. اس وقت اللہ نے آگ کو حکم دے دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا.
कुलना या नार कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, सलामती वाली बन जाता का मफहूम ये है कि ना इतनी ठंडी हो जाए कि इब्राहिम को तकलीफ पहुंचे और ना गर्म रहे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचे। उसकी पसंदीदा बन जाए, जिस तरह वो चाहता है उसके लिए गुजार बन जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसमें छलांग लगा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में छलांग लगा दी, कामयाब हो गए। आग का काम तो जलाना है, लेकिन आग ने जलाया नहीं। अल्लाह के हुक्म की आग पाबंद है, हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलती है। छुरी का काम जो है वो काटना है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब लटाया गया और छुरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चला रही है, छुरी काट नहीं रही। वो छुरी जो बड़े बड़े ऊँटों के गले काट देती है, जानवरों के गले काट देती है, इंसान का गला तो बिल्कुल नरम होता है यहाँ से, लेकिन इसके बावजूद छुरी जो असर नहीं कर रही। मालूम हुआ कि हर चीज अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। अल्लाह के हुक्म से होता है जो कुछ होता है। नीचे भी नबी है, ऊपर भी नबी है, ज़बा करने वाला भी नबी है, ज़बा होने वाला भी नबी है, लेकिन छुरी ज़बा नहीं कर रही। मालूम हुआ कि नबी की मर्जी भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर हो तो चलती है। नबी की मर्जी अल्लाह की मर्जी और मंशा के हद से हटकर हो तो फिर छुरी भी काम नहीं करती। छुरी को कहते हैं इज़बाह, ज़बा कर। वो कहती है अल्लाह मुझे कहता है ला तज़बाह, ना ज़बा कर। आपने जितना ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया है। ये कुर्बानियां हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिनके लिए अल्लाह ने तज़किरा फरमाया कि हमने इब्राहिम की आजमाइश की। वइज़्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, चंद बातों में इब्राहिम की हमने आजमाइश की। फअतम्महुन, वो उन बातों पर पूरा उतरा। उसने उन बातों पर पूरा उतरकर दुनिया को बता दिया कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना किसको कहते हैं। फरमाया कि क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने हुक्म कर दिया कि अब मैं तुझे दुनिया के इंसानों का इमाम बनाऊंगा। किसी इलाके का नहीं, किसी गांव का नहीं, किसी शहर का नहीं, किसी मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों का। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया कि क़ाल मिन ज़ुर्रिय्यती, मेरी औलाद के मुताल्लिक क्या हुक्म है, मेरी औलाद को भी इमाम बनाया जाएगा दुनिया का। फरमाया क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों के साथ मेरा कोई याद नहीं होगा। अगर वो उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर इब्राहिम चला है तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो रास्ता अगर ना इख्तियार किया तो फिर मैं उनको दुनिया का इमाम नहीं बनाऊंगा। ये दुनिया पूरी की इमामत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बेशुमार इम्तिहानात आए, और ये जो इम्तिहान आया कि उनको आग में डाला गया, ये भी मामूली इम्तिहान नहीं था। अगर वो आम आदमी होता, अल्लाह का नबी ना होता तो फिर वो उसमें फिसल जाता है, उस हुक्म की पैरवी ना कर सकता। अब यहाँ पर भी है कि वो जब आग जलाई गई है तो एक परिंदा आया, कबूतर का कहते हैं कि वो आया और उसने मुंह में चंद कतरे पानी के लिए हुई। रास्ते में फरिश्ता मिला, उसने कहा किधर जा रही हो? उसने कहा तो नहीं मालूम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया है, मैं आग बुझाने के लिए पानी के चंद कतरे लेकर जा रहा हूँ। तो उस फरिश्ते ने कहा कि चंद कतरों का क्या काम, वो तो बहुत बड़ी जो है तैयार की गई है, आग का खंदक तैयार की गई है, उसमें उनको डाला गया है, उसमें चंद कतरे क्या करेंगे? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं अपना फर्ज अदा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं चंद कतरे जो है वो डालकर आ जाऊंगा, मेरा फर्ज अदा हो जाएगा। आग मुझे या ना मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। यानी नेकी का प्रचार करना, नेकी की दावत देना ये जरूरी है। असर हो या ना हो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जितना कोई आदमी अपने हिस्से का काम कर सकता है उसको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अगर कबूतर की तरह 2 कतरे पानी के लेकर आना चाहे आग बुझाने के लिए, 2 कतरे ही दिया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए नमूना है। अल्लाह ने कुरान में ये दुआ फरमाई कि इब्राहिम की जिंदगी और उसके साथियों की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। उन्होंने किस तरह करके अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां पेश की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी असमत मआब बीवी को साथ लेकर, रफीका हयात को साथ लेकर जा रहे थे। पहले तो जब हुक्म हुआ कि सबको छोड़ दीजिए और इनको छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकल जाइए, हिजरत कीजिए, तो फ़लस्तीन में हम आपको नई दुनिया अता करेंगे।
अब हिजरत की है, फ़लस्तीन में आए हैं, फ़लस्तीन में आकर कदम अभी टिकने पाए नहीं कि हुक्म आ गया है अपनी इफ़्फ़त माब बीवी को साथ लेकर, अपनी इस्मत माब लफ्ते जिक्र को साथ लेकर, बेटे को और बीवी को साथ लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलो। जहाँ ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते, जहाँ ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ मुयस्सर ही नहीं है, ना पानी है ना खाने को कुछ मुयस्सर है। कुरान ने जिस वादी को वादी ज़ीर गैर ज़ीर ज़रा करार दिया है, ऐसी वादी जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसी वादी में चले जाओ, वहाँ पर चले गए। तो ये तीसरा मरला था इम्तिहान का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी इस इस्मत माब रफ़ीक़ा हयात को साथ लेकर चले गए और रफ्ते जिक्र को भी साथ दे दिया। वहाँ पर जाकर जब उनको बिठा दिया, उनको बिठाकर खुद जो है वो पानी की तलाश, लेकिन कोई नहीं पानी। वहाँ पर कोई मशीनरी भी होगी बड़ी से बड़ी, वो भी काम नहीं कर सकती, इतना दूर पानी है। तो कुरान ने इतला दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लफ्ते जिगर और अपनी बीवी को वादी गैर ज़िरा के दामन में, यानी ऐसी वादी जिससे कोई हासिल नहीं हो सकती थी खेती, उस वादी के दामन में छोड़कर हज़रत हाजरा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल, यानी ये दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, तन्हाई के आलम में इनको छोड़कर जा रहे हैं। वहाँ हाजरा पूछती हैं किस जुर्म में हमें तन्हाई के आलम में छोड़कर चले जा रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हैं, क्योंकि नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हैं कि मुझसे कोई ऐसी बात ना मुँह से निकल जाए जो अल्लाह की मंशा और मर्जी के खिलाफ हो। फिर उनको बताया कि मुझे अल्लाह का हुक्म आया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपको यहाँ पर छोड़कर मैं जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म आया है तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। उनका भी यकीन था। हज़रत हाजरा ने अर्ज़ जब किया तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बताने पर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप जाएं, जिस खुदा के सुपुर्द आप में करके जा रहे हैं, अगर उसका ये फैसला फिर वो अच्छा ही फैसला है। तो इस सवाल के जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र और उनकी उंगली आसमान की तरफ उठी। ये खामोश और जामिया जवाब था कि अल्लाह के हवाले आपको करके जा रहा हूँ, अल्लाह ही का हुक्म था इसलिए जा रहा हूँ। तो बाज़ लोगों का ये इक़्तिदा है कि नबी जो है मुख्तार कुल हैं। मुख्तार कुल नबी नहीं है, मुख्तार कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। कुल्ली इख्तियारात के मालिक अल्लाह की ज़ात है। मुख्तार कुल उसको कहते हैं जिसके पास कुल्ली इख्तियारात हो, सारे इख्तियारात हो। अब यहाँ पर नबी तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, अल्लाह के हुक्म से ही चला जा रहा है, जिस तरफ अल्लाह का हुक्म होता है उस तरफ जा रहा है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई देखकर हज़रत हाजरा बात को समझ गई कि अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा का इशारा है, इसको समझ गई। तो आप इत्मीनान से फरमाया चले जाएं, हमारी फिक्र ना करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने से पहले वहीं खड़े होकर रब्बुल इज़्ज़त के आगे हाथ उठाकर दुआ करते हैं। दुआ क्या करते हैं? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ, मेरे दाता मेरी रज़ा तेरी रज़ा के मुताबिक मैं इनको इधर छोड़कर जा रहा हूँ। अपने कल्बो जिगर का सरमाया, अपने दिलो नगाह की ठंडक को यहाँ पर छोड़कर मैं जा रहा हूँ, अपने बताए अजीज को छोड़कर यहाँ पर जा रहा हूँ। तो जहाँ सब्जा भी नहीं है, खाने को भी कुछ मुयसर नहीं है, पानी भी नहीं है, कोई मुंसो गमखार भी नहीं है, कोई अड़ोस पड़ोस नहीं है, बेअबान है, वीरान है, इस इलाके में छोड़कर जा रहा हूँ। इंसानी आबादी का नामो निशान तक नहीं, जिंदा रहने के लिए बज़ाहिर कोई असबाब नज़र नहीं आ रहे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होकर चले गए और फिर फरमाया रब्बना लियुकीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, कि मेरे दाता मैं तो अपने लफ्ते जिक्र को सुनाई में छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे तन्हा न रहने देना, अपने बंदों को मेरे बेटे की तरफ मतवज्जो कर देना और मेरे लफ्ते जिक्र की मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में पैदा कर देना। वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, और इन्हें इस तरह रिज़्क़ देना कि तेरे ये शुक्रगुजार बने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई। आज भी आप देख सकते हैं कि दुनिया जहान के फल उस धरती पर मौजूद हैं, उस जगह मौजूद हैं जिस जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कबूल हुई। पानी के लिए भी जो मुकाम था वो अब ज़मज़म पानी वहाँ से निकल आया।
ابراہیم अलैहिस्सलाम जब छोड़ कर चले गए तो माई हाजरा पानी की तलाश में निकली, वो दूर दराज चली गई, सफ़ा मरवा चली गई। कभी सफ़ा की तरफ जाती हैं पहाड़ी की तरफ, कभी मरवा पहाड़ी की तरफ जाती हैं। दोनों पहाड़ियों के दरमियान जब बच्चा आंखों से ओझल होता है तो फिर दौड़ लगाती हैं, सही करती हैं। अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र कर दिया कि इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह, इसको शाआइरिल्लाह करार दे दिया, आज का और उम्रे का शिआर करार दे दिया। जो सफर में नहीं करेगा, सही नहीं करेगा, उसका ना हज है ना उसका उम्रा है, और क़यामत तक के लिए ये उस माई की सुन्नत जो उसको ज़िंदा कर दिया। बेहतरी अल्लाह को ये सुन्नत पसंद आई। अब जब वो वहाँ पर गई तो फिर उधर से वापसी पर जब आई तो देखा कि पानी मौजूद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेज दिया। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेज दिया, वहाँ पर पानी का चश्मा निकल आया। उस पानी को बंद करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी दादी अगर उसके आगे पीछे रुकावट ना पैदा करती, रुकावट ना लगाती, यानी पानी की बनियाँ, मिट्टी की बनियाँ ना बांधती, फिर वो पानी सारी दुनिया तक पहुँच जाता। वो इतनी बड़ी तादाद में पानी निकलता है। चश्मा निकल रहा था, वो कह रही थी जम 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 जम, कि ठहर जा ठहर जा ठहर जा। वो वहीं पर रुक गया और उन्होंने पानी वहाँ पर इस्तेमाल किया। परिंदे आना शुरू हो गए, पानी देखकर प्यासे परिंदे। लोगों ने देखा दूर दराज से कि परिंदे वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर पानी वगैरह का को है। लोगों ने भी आना शुरू कर दिया, गैराबाद जगह आबाद होना शुरू हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होना शुरू हो गई, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और वो जगह इस तरह आबाद हुई कि आज वो अभी ज़मज़म दुनिया के कोने कोने में जा रहा है। कोई भी हाजी हज करके आता है, कोई भी उम्रा करके आता है, वो अभी ज़मज़म जरूर लेकर आता है। उसके पास लोग जो जाते हैं वो जाकर इसलिए जाते हैं कि जाकर उसके पास अभी ज़मज़म हम पिएंगे। वो अभी ज़मज़म ना पेश करें तो लोग कहेंगे कि तुम हज क्या करके आए हो, अभी ज़मज़म की तरह ज़मज़म तो दो। उसके पास ये निशानी होगी, ये शनाख्ती कार्ड होगा कि मैं उम्रा करके आया हूँ या मैं हज करके आया हूँ। तो अभी ज़मज़म जो उस तरह नहीं तो इस तरह पूरी दुनिया में अल्लाह ने फैला दिया। दुनिया के जिस कोने से भी कोई मुसलमान हाजिया उम्रे के लिए जाता है वो अभी ज़मज़म साथ लेकर है। तो इस तरह करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं भी कबूल हुई। और फिर वो दुआ जब खड़े कर रहे थे उस इमारत को, वयरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल, और फरमाया कि जब खड़ी कर रहे थे बुनियादें खाने काबा की इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, उस वक्त दुआ कर रहे थे, वयरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, या हमारे रब इसको हमारी तरफ से कबूल फरमा। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, उसको अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि, ऐ अल्लाह हमें अपना फरमाबरदार बना, लका व मिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलाद को भी उम्मतन मुस्लिमतन लक, और उनमें एक ऐसी उम्मत उठा जो तेरी फरमाबरदार हो। इस उम्मत की दुआ की, उम्मत के लिए भी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, नबी के लिए भी दुआ की, हजूर अलैहिस्सलाम के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी। उस वक्त इमारतें खड़ी कर रहे थे, बुनियादें खड़ी कर रहे थे खाने काबा की, और फरमाया था कि वारिना मनासिकाना, हमें हज के तरीके सिखा दे। हमें हज के तरीके मालूम नहीं है, खाना काबा तो बना रहे हैं हज करने के लिए, हज के तरीके भी सिखा दे। अल्लाह ने तरीके भी सिखा दिए। वतुब अलैना, और हमारी तरफ रजू फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान और रहीम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सारी कुर्बानी पेश की। बचपन उस वक़्त से लेकर जब अल्लाह के दीन की दावत उनके सामने पेश की, पिछले जुमा के मुतालिक बात की गई थी, बड़ी तफसील से बात की गई थी। उसके बाद भी कितने कितने मरले आए। वक़्त के हुक्मरान नमरूद के साथ टक्कर ली, वो भी अल्लाह के दीन के लिए टक्कर ली। उस टक्कर लेने के बदले में उसने आग जलाई और उनको आग में दाखिल किया। तो इस तरह करके अल्लाह ताला ने फिर अपने फजल से उसको ठंडा भी नहीं किया, गर्म भी नहीं किया, सलामती वाली बना दिया।
تو جب پانی پیدا ہو گیا پرندے آنا شروع ہوئے، بتایا گیا کہ اس وقت پھر سارے لوگ بھی وہاں پر آنا شروع ہو گیا، آبادی بھی وہاں پر قائم ہوگی۔ آج آپ اندازہ لگا نہیں، یہ وہ ایسا ملک ہے دنیا میں پھل ملے یا نہ ملے وہاں سے پھل مل جاتے ہیں، پھر وہاں کے پھلوں کا ذائقہ بھی عجیب، وہ ذائقہ بھی مزیدار، باقی سب دنیا کے پھلوں سے مختلف ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، ان کا اشار تھا، ان کی قربانی تھی۔ انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں بھی ان پر آئیں جس طرح دوسرے انبیاء پر آئیں، اور اللہ نے پھر قیامت تک کے لیے ان کے یہ ساری نشانیاں، آج کی نشانی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے جاری ساری کر دی، قیامت تک کے لیے قربانی کی نشانی ابراہیم علیہ السلام، سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری ساری کر دی۔ اور چھوڑ دیں 5 وقت جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نماز کے اندر اللہ نے جاری ساری کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قیامت تک کا جو آخری نمازی آئے گا ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود و سلام بھیجے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجے گا۔ اللہ کی خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور جد امجد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دین کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔